it all started with medicine, and then we went to Ayurveda, and a little bit about hearing. And so the mystery of hearing and deafness, I would like to invite Dr. Subhash Garg to chair the session for us. And Dr. Subhash Garg is a leading ENT in Kanpur, and I request him to come and chair the session. This session we will be taking you through a little bit of the hearing aspect, and our speaker for this session is Professor Dr. J.M. Hans, who is from Delhi, and he was director in the RML Hospital, and then has his own center and is the leading cochlear implant surgeon in the country. I request Dr. Hans to please come on the dais, and I request Dr. Garg to start the proceedings. Sure. Of chairing this session. Since we are running out of time, I will not take much time in between you and the speaker. I would first invite Dr. Rohit Mehrotra, the young and dynamic ENT surgeon of Kanpur, who has done his graduation and post-graduation from KG Medical College, Lucknow in 1997. It has been almost 20 years that he has been practicing in Kanpur. Joined as professor and head ENT department at Rama Medical College earlier, and now he is the professor of ENT in GSVM Medical College, Kanpur. He is running his ENT center in Ashoknagar, doing very well, and one of the pioneers of cochlear implant, which you will come to know now later, which is the sheath anchor for treatment of children born deaf and dumb. So he has done over 300 cochlear implants in Kanpur so far, and doing very well as that matter is now. And he is running a center which is a comprehensive center for the deaf children who are being implanted, rehabilitation and speech therapy after their cochlear implant. Dr. Rohit. Take over. So vision and hearing are our basic needs that connect. And when we talk of deafness and loss of hearing, we talk of Helen Keller, who was born deaf and blind. And when she was asked that if she would want to choose between vision and hearing, she chose hearing, because she felt that it expressed her isolation with not being able to hear. And she felt she will be able to connect people in a better way. Similarly, the music composer Beethoven was born deaf, and he composed his best music when he was totally deaf. And Edison again is a person who invented the light bulb, and he was born deaf. And he used to say that it helped him to concentrate without distractions. So this is how the ear looks like, and just a short video on how the hearing is. Is full of infinite sounds, but how do we actually perceive them? Sounds are collected by the outer ear, which consists of the auricle and the external auditory canal. The sound is guided through the ear canal to the middle ear. The sound arrives at the eardrum, a flexible circular membrane, which starts to vibrate when sound waves strike it. The sound waves are passed on by the movement of the eardrum to the middle ear. In the middle ear are 3 tiny bones, referred to as the hammer, the anvil, and the stirrup. Collectively, they are known as the ossicular chain. These form a bridge from the eardrum to the entrance of the inner ear. Their interaction increases and amplifies the sound vibrations further before these are relayed fully into the inner ear via the oval window. In the inner ear is the cochlea, which is similar in shape to a snail shell. It contains several membranous sections which are filled with watery fluids.
When the sound waves vibrate the oval window, the fluid begins to move, thus setting minute hair cells in motion. These hair cells then transform the vibrations into electrical impulses, which are sent via the auditory nerve and onto the brain. What we call noises are actually just sound waves, which are transmitted through the air. So this is how actually we hear. And now I request Dr. Garg to please introduce the main speaker of the day, Padam Shri Dr. Hans. Padam Shri Dr. Hans, children who are born deaf. He has done over 3,000 cochlear implants. I have not done even one so far. He has done 3,000 cochlear implants in his center in Delhi and all over India as well as in the SAARC countries. He is heading the Cochlear Implant Group of India presently and is a visiting cochlear implant surgeon to various medical colleges all over India. He is the consultant to the ex-Prime Minister of India and was awarded the Padma Shri in Padma Shri 2005 and now going on to Padma Vibhushan possibly next year. Over to Dr. Hans. In debt to Dr. Katiyar, the Vice Chancellor of the University, Dr. Rohit Mehrotra, Dr. Garg, for having invited me here. Cochlear implant is actually a very close thing to my heart. I was a cancer surgeon for almost 20 years when I left PGI Chandigarh, but that cancer surgery always gave me jitters because there was too much to be done and the results were not too many. I don't say that those people who do cancer surgeries are not the ones who need to be there, but it is important that I prefer to become a cochlear implant surgeon. बहुत दुख होता है जब एक मैं वर्ड्स ये यूज़ करूँगा, हम करते नहीं हैं, हम hearing handicap और speech handicap यूज़ करते हैं, but a deaf and a dumb when he comes close to you, आप एक जो आंखों से देख नहीं सकता उस पर पिटी करते हैं और एक डेफ एंड डम को रिडिक्यूल करते हैं, उसको दुत्कारते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो आपकी बात ना सुनता है और ना आपकी गाली सुनता है और ना ही रिस्पॉन्ड कर सकता है. सो दिस इज़ अ वेरी agonizing thing which probably touched my heart, and I was an ENT surgeon, though a cancer surgeon. I said no, I have to do this surgery, and one day I was successful, God's grace. 10% लोग हमारे में ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी हैंडीकैप हियरिंग हैंडीकैप से अफेक्टेड होते हैं, बेशक माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, प्रोफाउंड हो, और उसमें से 0.1% ऐसे लोग हैं जो किसी भी पहले तरीके से नहीं ठीक किए जा सकते थे, क्योंकि हम पर्दे का ऑपरेशन करते थे, हड्डियों का ऑपरेशन करते थे, लेकिन इस गोल चीज़ को जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं इसको हम कभी भी एड्रेस नहीं कर पाए, एंड दिस वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम. The cochlea is a transducer. It converts, as Dr. Rohit just told you, it converts the sound waves into electrical waves, क्योंकि जो नर्व है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल वेव्स को ही समझती है और वही दिमाग के सेंटर पे जाता है, वहाँ डिकोडिंग होता है, फिर हमें समझ आता है कि हमने क्या सुना, उसको समझते हैं, फिर उसको बोलते हैं. और इंसान ही एक ऐसा जंतु है जिसमें कि ब्रोकाज एरिया होता है, द स्पीच एरिया, और किसी में नहीं होता. तो जितनी देर हम लगाते हैं बच्चे में ट्रीट करने के लिए उतना ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका सबसे पहले जो ब्रोकाज एरिया होता है वो ख़त्म हो जाता है, और हमें इसीलिए इन बच्चों को बहुत जल्दी ऑपरेट करना पड़ता है. और इसमें डॉक्टर रोहित ने आपको बताया छोटे छोटे जो बाल थे, हेयर सेल्स जो थे, वो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करते हैं, और जब ये ख़राब हो जाते हैं तो हियरिंग आपकी ख़त्म हो जाती है. और इसके कारण बहुत है, और प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सब इरिवर्सिबल होता है, एक बार हो गया तो फिर कभी ठीक नहीं होगा. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो जेनेटिक होता है. अगर माँ बाप दोनों को ऐसे जीन्स हैं जिसके कारण आप बच्चा सुन नहीं पड़ेगा और उसके हेयर सेल्स खराब हो जाएंगे,
और अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश में कॉन्सैंग्विनिटी बहुत हाई है, आपस में क्लोज रिलेशंस शादी करते हैं, बहुत रिलीजन्स में, बहुत स्टेट्स में, तो ऐसे बच्चे बहुत पैदा होते हैं जो ये करते हैं, और हमारे देश में ये अभी भी चीज़ रैम्पेंट है। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी में आपको टॉर्च इन्फेक्शंस हो जाए, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला और ये सब चीज़ें, क्रिप्टोकोकस, तो ये हियरिंग लॉस बच्चे में हो सकता है। और रूबेला एक ऐसी चीज़ है जो तीनों ट्रिमेस्टर में, माँ के पहले दिन से लेके, अक्सर जो हमारा कान बनना शुरू होता है तीसरे हफ्ते में, और 7वें महीने पे जाकर पूरा बन जाता है माँ के पेट में। तो जब कभी भी कोई रूबेला का माँ को होगा तो एक्चुअली अबॉर्शन होना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। एक स्टेज के बाद बेशक हमें पता है कि बहुत चांसेस हैं कि ऐसी माँ को प्रॉब्लम होगी, हम करते नहीं हैं क्योंकि हम कर नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसे बच्चे को जिसको थर्ड ट्रिमेस्टर में भी रूबेला हुआ वो हो सकता है डेफ होगा। तो ये चीज़ हम बता रहे हैं। एक्वायर्ड केसेस में बहुत ज़्यादा है नॉइज़ ट्रॉमा, जो हम नॉइज़ को एक्सपोज होते हैं, वायरल फीवर्स होता है, मेनिंजाइटिस होता है, कुछ ड्रग्स हैं। पहले हम स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, आज भी हम अमेकासिन और ऐसी दवाइयाँ यूज़ करते हैं जो कि ओटोटॉक्सिक होती हैं और वो हेयरिंग को ख़त्म कर देती हैं। एजिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हेयर सेल्स हमारे अंदर के ख़त्म हो जाते हैं, कॉक्लिया का ट्रांसड्यूसर इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और हमें नहीं सुनता। अब मैं, आप समझिए कि इन सबको जिनको हम पहले ठीक नहीं कर सकते थे, ऑपरेशन से, जो कान का पर्दा लगा के, कान की हड्डियां ठीक करके, हेयरिंग एड्स देके, और जो प्रोफाउंडली डेफ थे, जो बिल्कुल कुछ नहीं जिनका हो सकता था, उनको हम कॉक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कॉक्लियर इम्प्लांट क्या फ़ायदा करेगा। बहुत महंगा डिवाइस है लेकिन 100% फुल प्रूफ है। अगर एक किसी को करा तो वो एकदम ठीक हो जाएगा, मैं कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या क्या कंडीशंस हैं जिनमें हम की कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं। एक है पोस्ट लिंगुअल डेफनेस, कि अगर मैं कल डेफ हो जाऊं, मैं बोलता हूं और मैं अब सुन नहीं सकता बिल्कुल जीरो, तो मैं पोस्ट लिंगुअल डेफ हो गया। इसी तरह से एक पेरीलिंगुअल डेफ होगा। पेरीलिंगुअल डेफ कौन होता है? जैसे कि बच्चा 1.5, पौने 2 साल के पास आके उसको ऐसी बीमारी हुई, उसने बोलना शुरू करने लगा था और वो डेफ हो गया, ये पेरीलिंगुअल डेफनेस होगा। एक होता है प्रीलिंगुअल डेफनेस, कि बच्चा पहले ही कुछ महीनों में सुनना बंद हो गया और ये प्रीलिंगुअल डेफ हो गया। और एक होता है कंजेनिटल डेफनेस, माँ की पेट से ही जब बच्चा डेफ पैदा होगा तो वो कंजेनिटली डेफ कहा जाएगा। अब ये जानने की क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत ये है कि जब हम कॉक्लियर इम्प्लांट करेंगे तो हम एक्चुअली माँ बाप को ये बता पाएंगे कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आप रिजल्ट्स इस तरह के एक्सपेक्ट करिए कॉक्लियर इम्प्लांट से। क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट अगर आप 8 महीने के बच्चे को करते हैं तो वो सुनता है, समझता है और फिर बोलता है। लेकिन अगर आप देर कर देंगे, आप 8 साल के बच्चे को जाके करेंगे, तो वो सुनेगा, कुछ समझेगा लेकिन बोलेगा नहीं, या बहुत कम बोलेगा, 1-2 शब्द बोलेगा। और ये हमारा कारण होता है कि हम जाने कि ये 4 कैटेगरीज क्या हैं जो कि हियरिंग लॉस की हैं, और अकॉर्डिंगली हम माँ बाप को ये बता सकें कि क्या प्रॉब्लम है। हम एक बच्चे को, एक दिन के बच्चे को आज जान सकते हैं कि वो डेफ है, कितना डेफ है, और उसकी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये होता है ओई बेरा ASSR के, ये एक डिवाइस होता है जो हम खेलते हुए बच्चे को भी अगर लगा दें तो हमें पता लग जाएगा कि ये सुनता है, नहीं सुनता और कितना कम सुनता है। पहले ज़माने में हमें बच्चे को सुला कर ये करना पड़ता था, लेकिन अब ये चीज़ खेलते खेलते हो जाती है। हम उसको डिवाइस लगा देते हैं, ब्लूटूथ से उसका वो सब पकड़ लेते हैं और हमें पता लग जाता है। इसकी ज़रूरत ये है कि अगर हम एक दिन के बच्चे को पकड़ेंगे कि इसमें हेयरिंग लॉस है, तो हम उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करेंगे। अगर उसको हेयरिंग एड्स की डिवाइस है तो हेयरिंग एड देंगे, अगर उसको आगे चल के कॉक्लियर इम्प्लांट की डिवाइस है तो कॉक्लियर इम्प्लांट देंगे। तो जब भी कोई बच्चा ऐसा आपके पास आए जिसको कि पता लगा कि ये सुनता नहीं है, वी हैव टू गेट अ 3D MRI ऑफ द कॉक्लिया एंड द न्यूरल बंडल। जो अंदर कॉक्लिया हमने आपको बताया गोल गोल है, और जो तार है जो दिमाग को जाती है, उसका हमें MRI करना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी होता है कि हम जाने कि क्या उसमें ये डिवाइस है भी, कि क्या हम उसका आगे इलाज भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर ये नहीं है
तो हमें 1 और 2 साल के बाद ब्रेन स्टेम इम्प्लांट करना है, जो कॉक्लियर इम्प्लांट से भी आगे है। वो इंडिया में हमने शुरू किया था, पहली बार बच्चों में किया था दिल्ली में, और वो बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको 1 और 2 साल के बीच में ही करें, हमने देखा जितने हमने बच्चे 3 साल के बाद किए, वो सुनते थे, थोड़ा बहुत समझते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट से भी एक स्टेप आगे हो गया, जिसके कारण हमें जल्दी से जल्दी यूनिवर्सल hearing screening is now a mandatory thing. Every hospital has to get it done because हम किसी भी बच्चे को खोना नहीं चाहते जिसका हमें पता नहीं लगे। पहले ज़माने में होता था 6 साल 5 साल के जाके बच्चे को पता लगता था इसको हेयरिंग लॉस है, माँ बाप उससे पहले लाते नहीं थे, फिर हम उसको बिना इन्वेस्टिगेट किए हेयरिंग एड दे देते थे। वो हमारे पास आता था जब 6-7 साल का हो गया, और जब हम फिर MRI करते थे, देखते थे ना उसमें कॉक्लिया है ना उसमें नर्व है, and we could not do anything for this child. He was now gone forever, despite the fact that we have these instruments available with us for the last about 30 years and about 25 years in India. पहले ज़माने में जो हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते थे, टोटल डेफनेस में करते थे कि 0, कोई हियरिंग नहीं है, हम इम्प्लांट लगाते थे, बच्चा सुनता था, समझता था और बोलता था। लेकिन अब हम इलेक्ट्रो अकॉस्टिक स्टिमुलेशन भी करते हैं। अगर एक बच्चे को हेयरिंग एड से 40% या 30% समझ आ रही है, उसको अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांट और हेयरिंग एड एक ही कान में देंगे, वो 100% नॉर्मल हो जाएगा। सो द कॉन्सेप्ट इज टू मेक द चाइल्ड 100% so that he listens to every speech spoken to him, he understands every speech, and therefore he speaks every word he's heard and understood. So the factors which would affect a cochlear implant surgery is कि कॉक्लिया की नॉर्मल एनाटॉमी होनी चाहिए। यस, आजकल हम एबनॉर्मल कॉक्लियाज में भी करके देखने लगे और रिजल्ट्स आने लगे। हम पहले अदर डिसेबिलिटीज में नहीं करते थे, जैसे ऑटिज्म है, मेंटल रिटार्डेशन है, सेरेब्रल पैल्सी है, उनमें हम इम्प्लांट्स नहीं करते थे क्योंकि बहुत महंगा था। तो माँ बाप कहते थे कि जब ये ठीक होगा ही नहीं 100%, तो हम क्यों करें। लेकिन अब माँ बाप खुद आते हैं, कहते हैं कि अगर इसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स हैं और एक ठीक होती है, ये अपने लायक कुछ बनता है, तो हम क्यों ना करें। और हमने देखा कि इन बच्चों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। अगर वो स्पास्टिक चाइल्ड है, सेरेब्रल पैल्सी है माइल्ड, और अगर सुनता नहीं था, हमने उसको हेयरिंग एड लगाया, तो वो सुनने लगा, समझने लगा। बेशक उसकी स्पीच जो है वो थोड़ी डिसार्थरिक रही बिकॉज ऑफ द सेरेब्रल पैल्सी। लेकिन हम आज भी ऐसे बच्चों पे जो प्रोफाउंडली डेफ है और मेंटली रिटार्डेड है बहुत ज़्यादा, कि वो अपनी चीज़ें फेंक रहे हैं, सर को दीवारों पे मार रहे हैं, उस तरह का अगर मेंटल रिटार्डेशन है, तो आज भी हम कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं करते क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली सपोर्ट हो इन बच्चों में, क्योंकि हम जो करते हैं उसके बाद उसको सिखाना है। तो जैसे माँ सिखाती है, हम बेशक आधा 1 घंटा सिखाएंगे, घर जाके माँ उसको 1 घंटा 24-23 घंटे सिखाएगी, तो उसमें रिजल्ट आएंगे। तो जिन माओं ने हेल्प किया बच्चे को नॉर्मल आने में, वो 8 साल के बच्चे भी बहुत नॉर्मल हो गए और बहुत अच्छा करने लगे। डॉक्टर रोहित ने बताया कि किस तरह से हम फंक्शन करते हैं। ये हेयर सेल्स होते हैं जो चले जाते हैं, और लेकिन जब हम कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं तो हम इलेक्ट्रोड, आप देखेंगे कि कॉक्लिया के अंदर डाल देते हैं, उसको हम बाहर से ही स्पीच को कन्वर्ट करके साउंड वेव्स में वो सीधा डाल देते हैं और ये सुनने लगता है। तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, ये बाहर का डिवाइस है। अब इससे भी छोटे आ गए, इसमें एक माइक्रोफोन है जो बाहर की आवाज़ को पकड़ेगा, वो इसको देगा। ये ट्रांसक्यूटेनियस, अंदर का स्किन ठीक है, वो उसको अंदर वाले डिवाइस को देगा, वो उसको बायोइलेक्ट्रिकल करंट में चेंज करेगा, जो अंदर का डिवाइस हमने इम्प्लांट किया, और वो सीधा कॉक्लिया को देगा, और जो बायोइलेक्ट्रिकल हमारा स्टिमुलस है जो हमने दे रहे हैं, वो सीधा नर्व को गया और वहां से ब्रेन को चला गया। तो इस तरह से जो डॉक्टर रोहित ने बताया कि हम कैसे सुनते हैं, उसको एकदम बाईपास हो गया। लेकिन अब आप देखिए, बहुत छोटे छोटे अंदर के डिवाइसेस आ गए, दे हैव बिकम वेरी स्मॉल। इवन इन एन 8 months old child we can put these devices and the results will not be much। पहले ज़माने में हम करते थे तो यहाँ तक ऐसा लगता था कि कोई चीज़ डाली है। छोटे से बच्चे के स्किन के अंडर वो प्रेशर से कभी कभी गड़बड़ भी करता था, और बाहर का डिवाइस इतना छोटा हो गया कि उसमें कोई वायर्स नहीं है, आप चिपकाएं और उसको लगा दें।
तो ये बहुत अच्छे डिवाइसेस हो गए। 20 साल में हमने देखा है, मैंने देखा है कि अंदर जो डिवाइस डालते थे इतना बड़ा होता था और बाहर का डिवाइस भी बहुत बड़ा होता था, और कई बार बच्चे 8 महीने के छोटे नहीं उसको बियर कर पाते थे। जो अंदर का डिवाइस था, देखिए आपने, बहुत बड़ा होता था, इसको भी हमें स्कल के ऊपर बांधना पड़ता था, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे केस करते हुए। और अब हमें 30 मिनट में हम जो टेक्निक मैं करता हूं, जो मैं आपको बताऊंगा, वो हम उससे ये कर देते हैं। आप देखिए बहुत छोटा सा इंसिजन भी देते हैं, हार्डली है, जिसको कि इस तरह से सी दिया जाता है, बच्चे में दिखता भी नहीं है वो। और आजकल मैग्नेट, एक आपने देखा होगा, एक बाहर चीज है, एक अंदर चीज है, अंदर भी मैग्नेट है। तो पहले जमाने में अगर हमें एमआरआई करना है तो हम उस मैग्नेट को ऑपरेट करके निकालते थे या जोर से पट्टी बांधते थे और तब एमआरआई होता था। लेकिन आजकल डायमेट्रिक मैग्नेट्स आ गए अंदर वाले के चीज में, जो कि अपने आप एमआरआई के साथ घूम जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं, ताकि आपको कोई देखना नहीं, आप जाइए एमआरआई कराइए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पहले वाले डिवाइसेस में हमें उस मैग्नेट को निकालना पड़ेगा, फिर एमआरआई करके उसको दोबारा ऑपरेशन करके डालना पड़ता था। और अंदर के जो इलेक्ट्रोड्स है वो भी, क्योंकि मैंने आपको बताया, हम नॉर्मल कॉक्लिया, स्मॉल कॉक्लिया, मॉन्डिनी डिफॉर्मिटी, सिंगल कैविटी, तो तरह तरह के इलेक्ट्रोड्स भी हैं जो अंदर डाले जाते हैं। वो हम पहले देख लेते हैं कि किस तरह का कॉक्लिया है और उस तरह की हम ये डिवाइसेस डालते हैं। आपने देखा कि कॉक्लियर शेप्स अलग हैं, उनके साइजेस अलग हैं, तो वो सब डिफरेंट हो जाता है। अब मैं करूंगा जो मैंने इस देश में ये सर्जरी शुरू करी थी, मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट। आप देखिए कि इतना बड़ा पहले ऑपरेशन होता था और अब हम ये छोटी सी टनल बनाते हैं 1.4 मिलीमीटर, जिसके थ्रू हम अंदर जाके और फिर कान के थ्रू उस इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं। आप देखिए इतना बड़ा पहले गड्ढा किया जाता था जिसको हम मैस्टोडेक्टमी करते थे, और अब सिर्फ ये टनल जो 20 साल पहले मैंने इंडिया में शुरू किया, अब 50 से ज़्यादा डॉक्टर रोहित भी ये वाला टेक्निक करते हैं और इसको वेरिया टेक्निक कहते हैं, और 30 मिनट में हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही है। हमने बच्चे में टनल बनाई और इलेक्ट्रोड को अंदर डाल दिया और बिल्कुल कोई लंबा चौड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, बहुत छोटा सा ऑपरेशन, बिल्कुल ब्लडलेस सर्जरी होती है और ठीक हो जाती है। अब देखिए जो लोग दूसरी टेक्निक करते हैं, इतना बड़ा छेद करके उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। जो ये टेक्निक है इसमें आप देखिए इलेक्ट्रोड अंदर है, लेकिन जो नॉर्मल मास्टर्ड एयर सेल सिस्टम है जो भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, वो वहीं का वहीं प्रिजर्व रहता है। ये मैंने 10 साल पहले किया था, ये किसी और डॉक्टर का जो पोस्टीरियर टिम्पेरोटमी करता है। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि ये टेक्निक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी वेरिया टेक्निक से जो चेंज होती जा रही है। वेरिया टेक्निक में एक और भी बहुत होता है, क्योंकि हम कान का पर्दा उठाते हैं और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल के थ्रू जाते हैं, तो जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस है, आप देखिए उस टेक्निक में ये छोटा सा एक्सपोजर है और इसमें पूरा का पूरा ये एक्सपोजर हो जाता है, जिससे कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन कर सकते हैं। ये गर्दन की बड़ी नस है जो कि कॉक्लिया को कवर कर रही है, और तब भी हम इसको बना सके और ये टेक्निक कर सके। ये फेशियल नर्व है जो कि एक्सपोज्ड है, तब भी हमने ये करा। तो बहुत आसानी से ये किसी भी, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इन बच्चों में कभी कभी ब्रेन का पानी, जिसको हम CSF कहते हैं, वो भी बाहर निकलने लगता है और बहुत तेजी से निकलता है अगर जब हम कॉक्लिया में छेद करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द कॉक्लिया टू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, द सबएरेक्नॉइड स्पेस। तो वो सारा का सारा ब्रेन का पानी निकलने लगता है, जिसको सील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि इस टेक्निक से बहुत आसान है और हमें दिख रहा है और हम सारा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल 3 हैंड टेक्निक जो मैंने डिवाइस करी, कि मेरा असिस्टेंट इसको पकड़ के रखता है ताकि वो हमें विजन में देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमने इलेक्ट्रोड ये अंदर डाल दिया है और फिर एक पेरिकॉन्ड्रियम, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा से वो सील कर देते हैं और वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये पॉसिबल हुआ हमारी टेक्निक से। पहले की दूसरी टेक्निक से ये प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सर्जरी है, अगर आप देखेंगे ये स्पेशल एक परफोरेटर है जिसके थ्रू ये टनल बनाई जाती है। 10 सेकंड की ये टनल है, जो कि दूसरे टेक्निक में आपको ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट मिल जाएंगे मास्टोडेक्टमी करने में। और आप देखें कि इस तरह से ये टनल बनी और ये ऐसे बनी, और फिर हमने इलेक्ट्रोड डाला। अभी हम इलेक्ट्रोड डालेंगे, आप देखेंगे कि इस तरह से खुल जाता है। उसमें हम कॉक्लियोस्टमी करते हैं और फिर अंदर के उसमें जो कॉक्लिया में छोटा सा छेद करके उसको
खोला जाता है ताकि कॉक्लिया अंदर से खुल जाए, और फिर जब ये खुल जाता है जो इलेक्ट्रोड है वो उस टनल के द्वारा इस कॉक्लिया में डाल दिया जाता है, बनिस्बत के इतना बड़ा छेद करे, पोस्टीरियर टिम्पेरोटमी, मैस्टेक्टमी जिसको हम कहते हैं। और ये देखिए अब ये इलेक्ट्रोड जाएगा और ये सीधा उसके अंदर चला गया। तो बहुत छोटी ऑपरेशन होता है, 30 मिनट में अगर आपने दोनों साइड करना है किसी बच्चे को तो आप समझिए आपको 2-2.5 घंटे में दोनों साइड हम कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी साइड सफा करना है, उसको देखना है, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड अंदर चले जाता है। तो इट्स अ वेरी वेरी इजी टेक्निक, वेरी हेल्पफुल एंड अ वेरी less time consuming technique, and that's the reason why many young doctors are now doing it in this country. 4 तरह के इम्प्लांट्स आते हैं इस दुनिया में अभी, हम चारों करते हैं। जो पेशेंट कहता है, अगर हम पे विश्वास करता है तो हम बता देते हैं कि ये चीज़ इस क्वालिटी में अच्छी है, ये क्योंकि इसका रेंज देखिए 5 लाख से 15 लाख तक का है एक साइड का। तो हर कोई महंगा वाला इम्प्लांट नहीं करा सकता, कोई सस्ते इम्प्लांट भी कराते हैं। तो किस में कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है वो फिर हमें बताना पड़ता है। तो सबकी प्रोज एंड कॉन्स हम बताते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इस टेक्निक से, क्योंकि मैं देश भर में और दुनिया के बाहर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कजाकिस्तान जगह जगह जाके ऑपरेट करता हूं, तो कभी कभी मुझे एक दिन में 10-10 बच्चों का ऑपरेशन करना पड़ता है, जो कि इस टेक्निक से बहुत मुमकिन है और बहुत आसानी से हो जाता है। ये सब एरियाज हैं जहां पर इस टेक्निक अब ये जूनियर्स मेरे करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। कुछ मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगा। कैन आई हैव द वीडियो प्लीज। अब ये देखिए बच्चे को हमने 8 महीने के बच्चे को किया था, वीडियो प्लीज। और ये अब बहुत बिल्कुल नॉर्मल, ये आप जरूर सुनिएगा क्योंकि आपको फिर आइडिया होगा कि जस्ट टेक अ मिनट बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट। तो ये बच्चा आप पहचान नहीं सकते, हमने 8 महीने के बच्चे को किया था एंड ही स्पीक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। यू कांट जस्ट मेक आउट दैट द चाइल्ड वाज एवर डेफ एंड डम। दोनों साइड हुआ और मीडियोकर इम्प्लांट हुआ। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे कम एज में, तो बड़े एज में अगर आई विश आई कुड हैव शोन यू दिस, द चाइल्ड इज हियरिंग नॉर्मली बट हिज स्पीच इज नॉट वेल डेवलप्ड। वो सुनता है, समझता है, लेकिन उसकी जो स्पीच है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है जब आप लेट करें। मैंने आपको बताया जो ब्रोकाज एरिया होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है बिकॉज रीसेंट इवोल्यूशन है। पहले कभी भी ब्रोकाज एरिया नहीं था, अब इंसान में आया, तो जो चीज़ लेटर इवॉल्व हुई है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है। तो ब्रोकाज एरिया का ये प्रॉब्लम रहता है। और आप अदरवाइज आप चाहें तो आप टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं। तो ये पोस्ट लिंगुअली डेफ लेडी थी जो अब टेलीफोन पे पूरा नॉर्मल बोलती है। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड आई एम प्राउड टू टेल यू दैट probably cochlear implants are the ultimate of biotechnology in the human treatment. ऐसा इससे ज़्यादा अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया भर में जो इंसान में लगाई जाए और आपको 2 सेंसेस दे दे, स्पीच, हियरिंग एंड स्पीच। सो इट्स अ मैग्निफिसेंट cochlear implants are magnificent things. अगर कॉक्लिया नहीं है या नर्व नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था, तो हम ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट करते हैं। ये बच्चों में हमने शुरू किया था। अक्सर अगर नर्व का ट्यूमर है और उसके बाद दोनों नसें कट गई तो हम आप कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं कर सकते, तो उसमें हम ब्रेन स्टेम इम्प्लांट करते हैं। आपने देखा कि इलेक्ट्रोड जो है वो ब्रेन के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ ऑडिटरी न्यूक्लियाई होते हैं वहाँ डाल देते हैं और ये न्यूरोसर्जन के साथ मिलके हमें करना पड़ता है। ये हमने किया, कम रिजल्ट्स आया जो कि 3 साल के ऊपर बच्चों में। Then we realized that possibly the best time to do brainstem implants were between 1 and 2.5 years of time, and that was the reason why you have to identify these children very very early in life. Indigenous implant के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जो अब्दुल कलाम साहब के साथ DRDO में मैं कर रहा था, और लेकिन उनके जाने के बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अब मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ पिछले 4 साल से, और इंशाअल्लाह भगवान करेगा कि एक दिन इंडियन इम्प्लांट बनेगा बहुत सून, और वो 1.5-2 लाख या उससे भी कम हमें मिलेगा।
क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं उस इम्प्लांट को बनाने के लिए। सो अब मैं ये कह सकता हूं कि डेफनेस नो मोर अ डिसेबिलिटी। आज के दिन में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होगी, बेशक वो 80 साल का इंसान होगा या 8 महीने का बच्चा होगा, हम उसको सुनना दे सकते हैं और वो मरने तक सुनेगा। उसको कोई और प्रॉब्लम हो बट वो सुनेगा। मैं अब दुनिया भर में जाता हूँ, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कजाकिस्तान, कहीं पर भी ये आपको लॉरेल्स मिलते हैं। इन सब के कारण ऑनर्स भी मिलते हैं। लेकिन आप प्लीज़ ये देखें, ये अगर इसको आप सुना सकते तो बहुत अच्छा होता। ये बच्चा अब डॉक्टर हंस बनना चाहता है, तो उसको अगर पूछिए तो कौन है, वो कहता है मैं डॉक्टर हंस हूँ। तो अगर इंस्पायर होके बच्चे आगे चल के 10 भी मेरे तरह ऑपरेशन ये करने लगे तो मेरा शायद जीवन सफल हो जाएगा। बहुत खुशी होती है इन बच्चों के साथ। सबसे ज़्यादा ऑनर ये बच्चे हैं। और मेरा दिल्ली में सेंटर है जहाँ पर मैं इन बच्चों को, यंग डॉक्टर्स को सिखाता हूँ। टेम्पोरल बोन डिसेक्शन है, हमारे पास हैबिलिटेशन है, हर चीज़ है वहाँ पे। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर वी हैव, वेयर वी हैव टेम्पोरल बोन लैब वेयर people come and learn about the surgery and then they assist me in the surgery and then they go and do it at the centers. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Dr. Hans. Dr. Hans ने जो हम लोगों को ये बता दिया कि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, सुन नहीं पाता, तो पहले तो हम लोग के पास कोई चारा नहीं होता था। वो बच्चा डेफ एंड डम स्कूल में जाता था, साइन लैंग्वेज सीखता था या नहीं भी सीखता था, करता हुआ पूरी समाज में घूमता रहता था, एंड ही हैड नो फ्यूचर। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते थे, उनको एक्सीडेंट हो गया, मेनिंजाइटिस हो गई, कुछ और डिजीज हो गई, तो बोलता बोलता बच्चा 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में बेचारा बहरा हो गया। उसके लिए पहले हम लोग पास कुछ भी नहीं था। अब कॉक्लियर इम्प्लांट, जैसा कि डॉक्टर हंस ने बताया, इज अवेलेबल टू अस। नॉट ओनली इज इट अवेलेबल टू अस, इट इज अवेलेबल टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। पहले तो ये 7-8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का खर्चा आता था, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन अब एडिप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा यहाँ पे कर रहे हैं, डॉक्टर हंस दिल्ली में कर रहे हैं, कई सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया who are doing this cochlear implant free। तो अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा बच्चा, you come across a child or a person who is become deaf or is deaf and he needs, as we said, apart from hearing aid, cochlear implant is something for people who cannot benefit from hearing aid। तो मेहरबानी से कानपुर में डॉक्टर रोहित मेहता के पास भेज दीजिए। फ्री होगा ना, फ्री कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, विच अदरवाइज वुड हैव कॉस्ट अबाउट 7 or 8 lakhs। दिल्ली में यू आर आल्सो डूइंग इट बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑफ कोर्स यू विल डू राइट, सो इट्स नॉट फॉर ऑल, बट एडिप फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन में डॉक्टर रोहित मेहता इन कानपुर और अदरवाइज इन ऑल। डॉक्टर हंस हैज एनलाइटेंड अस about the various techniques of cochlear implant, which of course doesn't concern most of you, but as far as you are all concerned, it is enough to know that there is a future for people who are deaf. Thank you very much, Dr. So we thank Dr. Hans for coming all the way from Delhi, and I would request 2 eminent personalities sitting here who will take over the next session. And my teacher, Dr. Upadhyay, I request him to come on the dais and felicitate Dr. Hans. And Mrs. Veena Tandon is here, and I would request her to come on the dais for the felicitation. Thank you. Yeah, go ahead with the question. सर, जैसा मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, तो अनुलोम विलोम या प्राणायाम करती हूँ, तो सर जब एक्सरसाइज करने के टाइम पे ये दिस लाइक दिस, तो सर कान बंद हो जाना, वो क्या होता है सर, क्यों हो जाता है? आपको डॉक्टर रोहित को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको नज़ला है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो वो ट्यूब बंद हो जाती है जो कान और नाक को जोड़ती है, तो ये ठीक हो जाती है। आप डॉक्टर रोहित से एक बार मिलेंगे तो ठीक हो जाएगा। और सर मैं जब चिली ज़्यादा, किस सब्जी में कभी चिली ज़्यादा हो जाए तो मेरा एक कान खुल जाता है और एक कान वैसे ही
हाँ वो देख लेंगे, वो देख रहा है क्या कारण है, तो वो कारण में देखने से उसको ट्रीट करने से ठीक हो जाता है। या प्लीज, बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छी चीज़ कही और इस पे काफ़ी काम भी हो रहा है और कुछ हम लोग भी इस पे वर्क कर रहे हैं। देर आर सम पेपर्स विच से कि शंख बजने से जो बच्चे शंख सुनते हैं वो हियरिंग उनकी इम्प्रूव करती है, लेकिन अभी कोई बहुत साइंटिफिक बेसिस इसका नहीं है। हालांकि अगर आप शंख का शेप देखें और अभी डॉक्टर साहब ने आपको कॉकलिया का शेप दिखाया, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदू माइथोलॉजी में हैं और जो हमें फिर से समझनी है, बिकॉज सो मेनी ईयर्स हैव पास्ड एंड वी डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स। तो कोई साइंटिफिक बेसिस अभी नहीं है, लेकिन जो आप कह रही हैं उसमें सच्चाई है। Next lecture is of Professor Veena Tandon, Padma Shri Awardee, Emerging Worm-Borne Joneses, Health Concerns and Challenges in India. I request Dr. Vikas Misra to come on the dais and conduct this session.